Okay, so basically, yes, Sanika, किया चालू मैंने, don't worry. So basically, this is how the auxin. अच्छा, auxin is the first hormone which we have learned in this particular chapter, plant growth and development. ये chapter हम लोग पढ़ रहे हैं, जिसमें से हम लोगों ने plant growth के बारे में काफी detailed discussion किया. This is about plant development, and development is possible with the help of the chemical messengers known as the hormones. तो 5 अलग अलग टाइप के हॉर्मोन्स है. फर्स्ट वन इज ऑक्सिन, सेकंड वन इज गिबरेलिन, थर्ड वन इज एब्सिसिक एसिड, फोर्थ वन इज इथाइलिन गैस एंड फिफ्थ वन इज साइटोकाइनेस. तो ऐसे 5 अलग अलग टाइप के हॉर्मोन्स है दैट वी नीड टू स्टडी. उसमें से ऑक्सिन हम लोगों ने लास्ट टाइम कंप्लीट किया है. ऑक्सिन का काम क्या होता है? प्राइमरी फंक्शन ऑफ द ऑक्सिन्स इज द सेल इलोंगेशन अलोंग विद द सेल डिवीजन. Okay, so it helps in increasing the length of the cell. Then formation of the callus in the tissue culture is a work done by auxin. Then formation of adventitious roots. Adventitious roots का मतलब क्या आता है? एक्स्ट्रा रूट्स. ओके, तो ये बनाने में काम में आता है. फाइब्रस रूट जिसको हम लोग बोलते हैं, तो वो बनाने में काम में आएगा ऑक्सिन. देन इट इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर रूट इनिशिएशन इन द टिश्यू कल्चर. जैसे टिश्यू कल्चर में कैलस बनेगा. सो कैलस इज लाइक अ बॉडी लाइक दिस विच हैज मेनी नोड्स एंड इंटरनोड्स. तो उसमें से कुछ नोड्स में से बनेंगे रूट्स और कुछ नोड्स में से बनना चालू हो जाएगा शूट. ओके, तो रूट इनिशिएशन में काम में आएगा ऑक्सिन. देन अपाइकल डोमिनेंस, ये प्रूनिंग का कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा था. अपाइकल डोमिनेंस इज कॉज्ड बाय ऑक्सिन. सो इफ वी हैव द बर्ड विच इज प्रेजेंट एट द एपेक्स एंड देन वी हैव द बर्ड विच इज प्रेजेंट at this region, तो यहाँ पे कुछ बड़ है, इधर कुछ बड़ है. So apical dominance will be produced by the auxins, right? So if you cut this particular bud, then the lateral buds will start developing. तो ये auxin का काम है. Auxin prevents abscission in young fruits and leaves, and auxin promotes abscission in the older fruits and leaves. Okay, young fruit और leaves में वो prevent करेगा. Abscission is falling of the leaves, falling of the fruits. And when the leaves and fruits they become old, it will promote that. The next, formation of parthenocarpic fruit. Parthenocarpic fruit मतलब क्या? The fruit is formed without fertilization, and then 2,4-D is used as a weedicide for dicot weeds. Okay, तो यहाँ पे ये जो एक substance है 2,4-D, which is the derivative of auxin, that is used as a weedicide to kill the weeds in the you can say soil, right, or हमारे farm में. So that is how the functions of the auxins are. Next, which we are going to learn here is the gibberellins. The next hormone which we are going to learn here is the gibberellin or gibberellin. How this particular hormone was discovered, discovery of the gibberellin. So gibberellins were discovered in Japan. इनका पहला डिस्कवरी हुआ था हमारा जापान के अंदर. एक मिनट, जस्ट अ मिनट. आज कम स्टूडेंट्स क्यों है रे? व्हाट इज द प्रॉब्लम? सब लोग भाग गए क्या? किधर गए? मेरी आवाज आ रही है ना सबको? हाँ सर. हाँ, तो बात क्यों नहीं कर रहा? आज स्टूडेंट्स कम है ऐसे मैंने पूछा. वेयर आर दे? सर आज औरंगाबाद और उटरीच के लिए क्लास. वो पता है मुझे, लेकिन वो भी नंबर अराउंड 45 to 50 के बीच में होता है. यहाँ पे इट इज इन द रेंज ऑफ 37. ये इसलिए मैं पूछ रहा हूँ. ठीक है, चलो. एनीवे, सर FLT आ रही है. वाह, उससे क्या है?
FLT आ रहा है तो क्या हुआ? Anyway, discovered in Japan. Gibberellins was discovered in Japan. Now it was discovered in this particular plant. ठीक है, राइस सीडलिंग कैसे डिस्कवर हुआ वो उसका थियरी है. सो राइस सीडलिंग बिकेम टू टॉल, थिन एंड पेल, राइट? So it was called as the foolish seedling disease or Becken disease, which looked something like this. So as you can see here, ये A वाला जो है ना ये abnormal है और B वाला जो है वो normal है. Normally rice is known to grow like this, but in this case it grew like this. So there was abnormal increase in this particular rice variety. So it was known as foolish seedling disease, or also called as the Becken's disease. Now, the scientist whose name is Kurosawa, in 1928, he what he discovered, इन्होंने क्या किया? Now he said that there was a disease caused by a fungus. Okay, the name of the fungus is Gibberella fujikurae. Now this is the name of the fungus which is known to cause a disease in the plant. Now this is some kind of a substance, and this substance caused certain abnormal elongation. तो कुरोसावा ने ये कहा कि ये जो foolish seedling disease है जिसकी वजह से प्लांट का जो ग्रोथ है वो एबनॉर्मल हो रहा था, इट इज बेसिकली कॉज्ड बाय अ फंगस, एंड द नेम ऑफ द फंगस इज गिब्रेला फुजिकुराई. And this Gibberella fujikurae has some chemical, and that has caused this abnormal elongation. This is what it said and discovered. Now what is that substance? तो वो substance ढूंढने का काम किए ये दो साइंटिस्ट ने. The name of the scientist is Yabuta and Sumiki. एक मिनट रुको, मैं सारे दिखाता हूँ, पहले पढ़ लो इसको. Yabuta and Sumiki in 1938 they isolated for the first time and extracted the disease causing substance, and because it was extracted from Gibberella, therefore the name was given as gibberellins. Okay, फंगस इज गिब्रेला फुजिकोराई, इसके लिए उसको नाम दिया गया गिबरलिंस, which actually is a type of chemical which caused this disease in the plants. Okay, so now we need to understand कि गिबरलिंस है क्या, इसका केमिकल कॉम्पोजिशन क्या होता है, इसका एक्चुअल फंक्शन क्या है, और अगर इसकी वजह से बीमारी आती है तो क्या हो सकता है, राइट? सो ये हम लोग पढ़ेंगे. डिस्कवरी सबको समझा? तो जापान में ये डिस्कवर हुआ, जो एक प्लांट में यानी राइस वैरायटी में ऑब्जर्व किया, उसका नाम था फुलिश सीडलिंग डिजीज, जिसमें क्या होता था, एबनॉर्मल इंक्रीज इन हाइट ऑफ द प्लांट, राइस प्लांट, एंड दैट वाज बिकॉज ऑफ द फंगाई. एक फंगस था, जो फंगस का नाम क्या था, गिब्रेला फुजिकोराई. ओके, और इसकी वजह से ये फंगल इन्फेक्शन की वजह से एबनॉर्मल ग्रोथ हुआ, और इसी गिब्रेला फुजिकोराई से याबुटा एंड सुमुकी ने आइसोलेट किया केमिकल सब्सटेंस कॉल्ड एज गिबरलिन्स, एंड दैट इज हाउ इट वाज लेटर ऑन नोन एंड अंडरस्टूड एज अ टाइप ऑफ हार्मोन. ओके, तो ऐसा ये पूरा डिस्कवरी है, राइट? बच्चे बीमार है, बाप रे, क्या हो गया साई प्रसाद बच्चों को? चलो, कौन सा स्लाइड चाहिए, पहले से ही दिखाऊं? हाँ. So this is first. कौन सा साई प्रसाद? Which virus? चलो ठीक है, हो गया. Done? Yes, sir. So Kurosawa observed that this disease was caused by a fungus.
सानिका घोड़के, डन। अरे वो अमन किधर गया? लास्ट लेक्चर में भी नहीं था, कल आज भी नहीं है। ओ, इट विल दिया हेल्प द प्लांट्स ना, देखते कैसे हेल्प करता है। चलो आगे बढ़े ना। व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गिबरलिंस? फिर ये हार्मोन का स्टडी किया गया, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े गए। नाउ केमिकल कंपोजिशन, केमिकली इट इज मेड अप ऑफ अ सब्सटेंस नोन एज गिबरेलिक एसिड. Okay, so that is the chemical composition. So there are more than 100 types of gibberellic acids or gibberellins under the name as GA1, 2, 3, 4, 5, 6 till 100 इस तरीके से, ठीक है. So they are commonly called as GA. Trade name is GA, ऐसा बोलते हैं उसको. Okay, and GA3 is the first discovered and most common and widely studied hormone. Okay, this one is the most widely studied hormone and they are synthesized from the acetate units of acetyl coenzyme A. Acetyl CoA ऐसा बोलते हैं उसको. Okay, acetyl CoA, तो इसमें से इसका synthesize होता है. So derivative of this. Okay, so this is the chemical composition of the gibberellin or gibberellins. वैष्णवी, अभी जाके एक लोग आ रहे हैं, यानी कोई तो भी फोन करके बोल रहा है, सर पूछ रहे हैं किधर है. डन, लिख लिया सबने ये? सर हाँ हाँ, लिखो लिखो. सर डन, नो सर. हाँ ठीक है लिखो. हाँ इशिता, एक मिनट, दिस इज लास्ट स्लाइड. हो गया इशिता? चलो डन. Now, so what is the site of synthesis? Gibberellins कहाँ पे synthesize होते हैं? So in the plants, they are synthesized in the apical buds, then the tips of growing roots and young leaves. Okay, so wherever the plant is showing growth, वहां पे आपको ये पर्टिकुलर सब्सटेंस मिलेगा. ट्रांसपोर्ट कैसे होता है? ट्रांसपोर्ट इज बेसिकली इन द नॉन पोलर फैशन, इन ऑल डायरेक्शन. मतलब it can be transported in both upward as well as downward direction. Okay, so that is the transport mechanism, how it is transported. Of course, phloem से ही transport होगा ये, carried from one cell to another. Generally, all the cells are known to synthesize their own chemical substance, as we know that it is present at the tip of the root tip of the young leaves as well as apical bud. यानी जहाँ पे भी plant में growth हो रहा है, वहाँ पे आपको गिबरेलिक एसिड मिलेगा. Okay, चलो लिख लो इसको.
Finished? Now, gibberellins induce elongation of the cells in the stem. This is the function. ये इसका function है. क्या हुआ आनंद? लिखना है? ये लो. हो गया आनंद? सानिका यही था बैक साइड. हाँ? Anyway, so it helps in elongation of the cells in the stem. स्टेम में जो सेल्स होते हैं उसका इलोंगेशन करता है. तो नेचुरली अगर सेल स्टेम के सेल्स का इलोंगेशन हो रहा है मतलब क्या? इट इज हेल्पिंग इन इंक्रीजिंग द हाइट ऑफ द स्टेम. ठीक है. सो इट्स एप्लीकेशंस विल हेल्प इन इंक्रीजिंग द लेंथ ऑफ द जूट फाइबर्स. तो जूट फाइबर्स में गिबरेलिन को अप्लाई किया जाता है, बट अगेन इट हैज टू बी अप्लाइड इन द नॉर्मल क्वांटिटी सो दैट इट विल नॉट इंड्यूस एनी डिसीज. नहीं तो बीमारी हो जाएगा. Get in this? तो इसके एप्लीकेशन से क्या होता है? It will help in increasing the length of the jute fibers, right? Because it is known to increase the length of the cells which are present within the stem. So that is the function. ठीक है? So gibberellin also increases the size of the fruit. तो फ्रूट का साइज बढ़ाने में काम में आता है. जैसे थॉमसन सीडलेस वैरायटी ऑफ द ग्रेप्स इज बेसिकली अ टाइप ऑफ फ्रूट व्हिच इज प्रोड्यूस्ड बिकॉज ऑफ एप्लीकेशन ऑफ द गिबरेलिन्स. ठीक है. इट्स अ सीडलेस वैरायटी, doesn't produce any seed. Then gibberellins are also known to break the dormancy of the seed. Now what is dormancy of the seed? कौन सा लास्ट स्लाइड चाहिए? ये भी हो गया. हो गया. ओके. नाउ अभी ये थोड़ा ध्यान दो इधर. गिबरेलिन्स आर नोन टू ब्रेक द डॉर्मेंसी ऑफ द सीड. नाउ व्हाट इज डॉर्मेंसी ऑफ द सीड? जैसे हम लोगों ने देखा होगा, देखो मार्केट में बहुत सारे सीड्स मिलते हैं, राइट? जो हम लोग बड़े बड़े कंटेनर्स में लाके उसको रख देते हैं. आर दी सीड्स जो विच आर प्रेजेंट इन द कंटेनर आर गोइंग टू डेवलप टू द प्लांट्स? कंटेनर में प्लांट बन गया, ऐसा होने वाला है क्या? नहीं. इसका मतलब क्या होता है? The seeds when they are not exposed to the given environment, they will always remain inactive. So that inactivity of the seed is known as the dormancy of the seed. तो उसको ब्रेक करना बहुत जरूरी होता है when the seeds are sown in the soil. एक मिनट बच्चों, जरा give me a minute.
कौन सा लास्ट स्लाइड चाहिए भाई आनंद? अच्छा, okay. चलो, गिबरेलिन्स basically are known to break the dormancy. I was talking about dormancy. Dormancy मतलब inactive stage of the seed. अभी क्या होता है ना, seeds when they are not exposed to the soil, they will be protected with the help of a covering. Okay, outer covering रहता है, which is a very hard covering. Now this needs to break when it is exposed to the soil, so that the water will start getting absorbed, and then this will help in development of the plant. तो इसको निकालने के लिए, इसको ब्रेक करने के लिए और डेवलपमेंट ऑफ प्लांट के लिए गिबरेलिन्स आर यूजफुल. Okay, plus it also known to break the dormancy in the birds as well as the flowers. Flowers में क्या होता है? This is LDP stands for long day plants. मैं बोलता हूं ये क्या होता है, बाद में पता चलेगा आपको. Okay, this is known as LDP stands for long day plants. Okay, now conditions which are necessary for this is like this. For example, in case of seed, to break the dormancy of the seed, generally low temperature and low light is the condition. Bud का dormancy करने के लिए again cold season and long day, यानी लाइट एक्सपोजर ज्यादा है तो वहां पे गिबरेलिन्स विल बी यूजफुल. फ्लावर्स का डॉर्मेंसी रिड्यूस करने के लिए गिबरेलिन्स विल रिक्वायर शॉर्ट डे. शॉर्ट डे मतलब लेस एक्सपोजर टू द लाइट. ओके, तो मतलब ये अलग अलग कंडीशंस है टू ब्रेक द डॉर्मेंसी इन दीज 3 स्ट्रक्चर्स. सो सीड का डॉर्मेंसी अगर ब्रेक करना है तो इट रिक्वायर्स लो टेम्परेचर एंड लो लाइट. बर्ड के डॉर्मेंसी को ब्रेक करने के लिए इट रिक्वायर्स कोल्ड सीजन and long day, and flowers के लिए it requires short day. Short day मतलब less exposure to the sunlight. So these are the conditions which are necessary to break the dormancy of the seed, dormancy of the bird and dormancy of the flower. Dormancy मतलब inactive stage. Okay, so this is known as the inactive stage. और इसको ब्रेक करके so that the seed will develop into a seedling, bud will develop into a next structure that is flower or whatever, and flowers will develop into the fruit. तो उसके लिए ये कंडीशन और ये हार्मोन जरूरी होता है. तो सबसे पहला फंक्शन इसका आएगा इलोंगेशन ऑफ द सेल्स इन द स्टेम. सेकंड फंक्शन आता है टू ब्रेक द डॉर्मेंसी ऑफ सीड, बर्ड्स एंड फ्लावर्स. राइट, इसको पहले लिख लो. श्रुति मैंने बताया ना इधर, सी दिस लॉन्ग एलडीपी स्टैंड्स फॉर लॉन्ग डे प्लांट्स, दैट इज एलडीपी. ओके श्रुति, Yes, sir. Understood. हो गया? Shall we move ahead? Yes, sir. Okay. तो ये एक फंक्शन हो गया. Next, gibberellins also are known to delay the senescence of the fruit. Delay the senescence. Senescence का मतलब होता है aging.
फ्रूट का अपना एक लाइफ स्पैन होता है, फ्रूट डेवलप होता है, फिर वो इडेबल होता है, उसके बाद धीरे 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 क्या हो जाता है, फ्रूट विल स्टार्ट डिकम्पोजिंग, उसको हम लोग बोलते हैं एजिंग। तो वो एजिंग को डिले करने का काम करता है, सो दैट द फ्रूट्स कैन रिमेन young for a long time. Sir, elongation of stem by gibberellins is possible only in jute fibers or no, in every plant, Lohita. In every plant it will be same. Okay, fine. तो ये एक काम रहेगा इनका। सो ये जो एजिंग हो रहा है, मतलब नेचुरल डिस्ट्रक्शन हो रहा है, उसको डिले करने का, मतलब उसको लेट करने का काम कौन करेगा? दैट इज गिबरलिंस। सो GA3 इज यूज्ड इन माल्टिंग प्रोसेस इन ब्रूइंग इंडस्ट्री। ब्रूइंग इंडस्ट्री इज बेसिकली मेकिंग वाइन मेकिंग, तो उसमें ये काम में आता है। दैट्स कॉल्ड एज द माल्टिंग। माल्ट से वाइन या फिर बियर या फिर ऐसे विस्की वगैरह बनता है, ठीक है। तो उसको बनाने के लिए GA3 विल बी यूज्ड, राइट। सो दिस इज अनदर इंपॉर्टेंट फंक्शन। इंपॉर्टेंट इज सेनेसेंस। सेनेसेंस मतलब एजिंग। इसके लिए ना गिबरेलिन्स का एप्लीकेशन भी, स्प्रे या फिर गिबरेलिन जो है, गिबरेलिक एसिड स्प्रे किया जाता है ऑन द फ्रूट्स, so that they will remain young for a long time, क्योंकि उसका सेनेसेंस डिले हो रहा है, राइट। तो कभी कभी फार्मर्स आर्टिफिशियली भी उसको इस तरीके से रख सकते हैं, यंग रख सकते हैं, so that it will look fresh. ठीक है, डन हो गया। फिनिश्ड। Fine. Then gibberellins also promote early seed production in the juvenile conifer. Juvenile मतलब young, ठीक है। यंग कोनिफेरस, पाइन रहता है ना, पाइन या फिर साइकस, ठीक है। ऐसे प्लांट्स में जनरली कोनिफेरस बोलते हैं हम लोग उसको। तो उसमें इट प्रमोट्स अर्ली सीड प्रोडक्शन। सीड प्रोडक्शन जल्दी होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए, उसके लिए गिबरेलिन्स आर गोइंग टू प्रमोट दैट मैकेनिज्म। जुवेनाइल मतलब यंग स्टेज। जैसे आप लोगों का एज होता है ना, वी कॉल दैट एज जुवेनाइल, है ना, वेयर यू आर नॉट एडल्ट, यू आर नॉट चाइल्ड ऑल्सो एंड यू आर नॉट एडल्ट ऑल्सो, सो दैट्स नोन एज द जुवेनाइल स्टेज। इसको लिख के रखो। And then gibberellins also promote bolting in plants with rosette habit. अभी bolting क्या होता है वो थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। This is known as internode elongation. Yes, Okay. slide. कौन सा लास्ट स्लाइड? ये ये हो गया? yes sir, done. Okay. Now they are also known to promote the bolting in plants with a rosette habit, जिसको हम लोग बोलते हैं इंटरनोड इलोंगेशन। इंटरनोड इज व्हाट? जैसे अगर ये स्टेम है, ये स्टेम को यहाँ पे एक नोड है, इधर एक नोड है, इधर एक नोड है, तो ये दो नोड्स के बीच में ये वाला जो स्ट्रक्चर होता है उसको हम लोग बोलते हैं इंटरनोड। तो ये एक इंटरनोड है, ये एक इंटरनोड है, ये वाला है, ये वाला है, लाइक दिस। सो दीज आर ऑल नोन एज द इंटरनोड्स। अभी बोल्टिंग क्या होता है ना, दैट वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड। जैसे कैबेज में जनरली इसका यूज होता है, दिस इज नोन एज रोजेट फैशन ना। रोजेट हैबिटेट मतलब क्या? ऐसे गोल गोल, मतलब जो ग्रोथ हो रहा है लीफ का या फिर स्ट्रक्चर्स का, इट इज इन दिस फॉर्मेट, गोल 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 हो रहा है। तो इसको हम लोग बोलते हैं रोजेट फैशन। ओके, जैसे कैबेज में जो पत्ता गोभी जो रहता है ना, वो इसी तरीके से आपको दिखेगा, राइट। ठीक है, इसको लिख लो पहले, फिर मैं बोलता हूँ कि एग्जैक्टली प्रोसेस क्या होता है और कैसे होता है। ओके, हो गया? Yes sir, done. सो एक्चुअली क्या होता है ना, अभी ऐसे बोल्टिंग हो रहा है, राइट। बोल्टिंग का मैकेनिज्म में होता क्या है, जो प्लांट होता है ना, इसका जो नेचुरल ग्रोथ है वो हैम्पर हो जाता है। सो इट ग्रोज प्रीमैच्योरली,
ठीक है, प्रीमैच्योरली ग्रोज इनटू अ फ्लावर स्टॉक्स, या फिर इवन इट स्टार्ट्स प्रोड्यूसिंग द सीड्स प्रीमैच्योरली, ताकि स्टेम बहुत बड़ा हो ही नहीं सकता है, स्टेम छोटा ही रहेगा या स्टेम होता ही नहीं है, डायरेक्टली फ्लावर्स आके फ्रूट बनना चालू हो जाएगा, वेजिटेबल्स बनना चालू हो जाएंगे. सो दैट इज नोन एज द बोल्टिंग मैकेनिज्म. नाउ एप्लीकेशन ऑफ दिस will help in conversion of genetically dwarf plant to a phenotypically tall plant. अगर इसका एप्लीकेशन हम लोग करते हैं तो दिस पर्टिकुलर प्लांट इज जेनेटिकली ड्वार्फ, बराबर है. हाँ, कैबेज में होता है या फिर ऐसे और कोई वेजिटेबल्स रहेंगे जहां पे रोजेट फैशन आता है तो वहीं पे श्रुति होगा, अदरवाइज ये बोल्टिंग का मैकेनिज्म बाकी इसमें होता नहीं है. लेकिन वही अगर ये गिबरेलिक एसिड को अगर मैं ड्वार्फ, जेनेटिकली ड्वार्फ है मतलब बाय जीन्स इट इज ड्वार्फ, लेकिन उसको मुझे बड़ा करना है, तो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज दैट आई एम गोइंग टू अप्लाई गिबरेलिक एसिड. तो गिबरेलिक एसिड क्या करेगा, गिबरेलिक एसिड विल हेल्प इन सेल इलोंगेशन. स्टेम का सेल का इलोंगेशन होगा, तो जैसे ही स्टेम के सेल का इलोंगेशन होगा प्लांट का साइज बढ़ेगा. लेकिन कैसा है, अभी ये प्लांट टॉल है, बट जेनेटिकली दिस प्लांट इज, यस, जेनेटिकली ये प्लांट टॉल है कि शॉर्ट है, शॉर्ट. बराबर है. इसका मतलब अगर ये प्लांट ने अगर नया प्लांट बनाया तो वो प्लांट कैसे रहेगा, टॉल रहेगा कि शॉर्ट रहेगा, Short. गेटिंग दिस. तो मैंने क्या किया, टेम्परली फॉर दैट पर्टिकुलर सीजन, फॉर दैट पर्टिकुलर पीरियड उसका कैरेक्टर मैंने बदल दिया. Okay, otherwise since it is genetically dwarf, so it will continue to remain as genetically dwarf. Gibberellic acid will not change the genes, but gibberellic acid will help in cell elongation of the stem. So stem cells का अगर elongation होता है तो that will lead to increase in height. Okay. Done. No, sir. हाँ हाँ, लिखो लिखो. Done, sir. Okay. Now, gibberellin also is known to cause the leaf expansion. So, application of this will increase the commercial value of the leafy vegetables. तो जितने भी लीफी वेजिटेबल्स होते हैं जैसे कैबेज हो सकता है या फिर स्पिनच होता है या ऐसे कुछ होते हैं ना, सो दीज आर ऑल लीफी वेजिटेबल्स, तो उनके लीफ का एक्सपांशन ये करता है. सो नेचुरली इट विल हेल्प इन इंक्रीजिंग द कमर्शियल वैल्यू. लेकिन वो भी लिमिटेड पे इसमें अप्लाई करना पड़ता है, बहुत ज्यादा करेंगे तो फिर वो एबनॉर्मल हो जाएगा. तो नेचुरली इट कैन कॉज डिसीजेस, राइट. अगेन क्यों हो रहा है, बिकॉज इट हेल्प्स इन सेल इलोंगेशन, तो लीफ एक्सपेंशन इज आल्सो पॉसिबल. ओके, सो गिबरेलिन विल कॉज लीफ एक्सपेंशन. ठीक है. डन. No, sir. Wait. Last slide, 1 minute as I was disconnected. ये वाला. Yes, sir. हाँ. Yes, Okay. just a minute. Yeah. Finished? Done, sir. Chalo, application of the gibberellin will also promote the seed germination in monocots. Okay, सिर्फ monocot में होगा, dicot में नहीं होगा. So the energy for the seed germination is obtained from the sugars, right? So that is the application of the gibberellin. So gibberellin induces amylase enzyme synthesis in the seeds.
और अमाइलेज का अगर सिंथेसिस होता है तो नेचुरली स्टार्च in the presence of amylase will be converted into glucose, and this glucose will be used for the production of energy which helps in germination. Okay, so this is how the link or connect is. So it promotes the seed germination. When I say seed germination, matlab kya? When the seed is sown in the soil, it develops into a seedling, seedling develops into a young plant. So this mechanism is done with the help of gibberellins. Okay, so this is another important one. ये सब आपको याद रखना पड़ेगा. There is no option. Done. Yes, sir. ठीक है. So the food in the seed is stored in the form of starch, and the starch is now converted into sugar by amylase. Same जो मैंने अभी बताया आपको ये. So starch is converted into glucose in the presence of amylase, and then it starts producing ATP. ठीक है. Same dialogue वहाँ पे था. Right. So as you can see here, this is water getting absorbed. This is endosperm of the monocot seed. Now gibberellic acid is being applied here, and then immediately it has started developing the seed. So seed germination हो रहा है. So radicle is developing, plumule is developing from here, radicle is developing from here. Okay. So this is how seedling mechanism will develop, and then this seed will develop into the entire seedling. Right? So absorption of the sugar will take place क्योंकि alpha amylase release हुआ है ना. So this alpha amylase will convert starch into glucose. Glucose will be utilized for the production of energy. Fine. तो ऐसा ये gibberellin का use. Next, gibberellins also induce development of parthenocarpic fruits. अभी देखो क्या दिया है, डेवलपमेंट का नाम दिया है. हाँ, सो द एप्लीकेशन ऑफ गिबरेलिन्स हियर विल प्रोड्यूस द सीडलेस फ्रूट्स. राइट. तो जैसे हम लोगों ने इस ऑक्सिन में भी देखा था, सेम ऑक्सिन विल हेल्प इन पार्थेनोकार्पी, मतलब डेवलपमेंट ऑफ द पार्थेनोकार्पिक फ्रूट. अलोंग विद द ऑक्सिन्स, गिबरेलिन विल आल्सो हैव द सेम यूज. इसका भी सेम यूज रहेगा. सो दिस इज अनदर इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ गिबरेलिन. हो गया. कौन सा लास्ट स्लाइड चाहिए? ये वाला तो ही था. डन. हो गया. Done, sir. This also you have written. Finished. Hello. Yes. हाँ. चलो. So this is in short summary of what the role and application of gibberellin. So gibberellin induce elongation of the cell in the stem. Next, increases the length of the jute fibers. Conversion of genetically dwarf plant to a phenotypically tall plant. देखो वर्ड कैसे यूज किया है. एक जेनेटिकली ड्वार्फ प्लांट है, उसको फिनोटिपिकली टॉल बनाया. मतलब जेनेटिकली वो टॉल नहीं है, लेकिन फिनोटिपिकली उसको टॉल बना दिया. Gibberellins are also known to break the dormancy of the flowers, buds and the seeds. ठीक है. 1-2 मिनट ना बच्चों. चलो ये पॉइंट सेम है जो मैंने अभी आप लोगों को बताया, आप लोगों ने लिखे है. ठीक है. लेट्स सी. एक जस्ट गिव मी 2 मिनट्स.
कौन सा लास्ट लेटर चाहिए लोहिता तुझे? संजीवनी को भी वो लास्ट। बहुत पुराना था। अच्छा पुराना था, ओके चलो हो गया। मुझे ना इधर बार बार कोई ना कोई मिलने के लिए आ जाते हो, 2 मिनट 2 मिनट 2 मिनट ऐसे करके ना नॉन स्टॉप कोई ना कोई आते रहता है। चलो डन। तो ये सेम है जो आप लोगों ने ऑलरेडी लिख के रखा है, उसको समराइज हमने किया। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट हार्मोन विच वी आर गोइंग टू लर्न हियर इज द साइटोकाइनिन्स। नाउ एज वी ऑल नो, फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ठीक है, ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म including the plants, we require a very important process that is known as cell division. In case of plant, it is primarily done by cytokinins. And that is why cytokinins will be present in all those parts of the plant where cell division required is more. मेरा sentence समझ में आया? No, sir. साइटोकाइंस, अभी मैंने क्या दिखाया इधर, फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इन एनी ऑर्गेनिजम्स इंक्लूडिंग द प्लांट्स, द प्रोसेस रिक्वायर्ड हियर इज सेल डिवीजन। यहां तक ठीक? Yes, sir. In case of plant, cell division is primarily promoted by cytokinin, and therefore cytokinin will be present in all the parts of the plant which needs cell division. So as Diya has rightly said, it is meristematic cells. Correct, Diya. So meristematic cells will have cytokinin. Quantity of cytokinin in meristematic cells will be more. Will it be present in permanent tissue or permanent cells? No. Very good, Sanika. It won't be present. Sanika Valimbe. It won't be present because there the cell division stops. Any other structure, any other part of the plant where you will find that cytokinins are required? ऐसा कौन सा पार्ट होता है प्लांट का जहां पे इट नीड्स टू डेवलप वेरी फास्ट विद इन फ्यू मंथ्स? वेरी गुड आदित्य, क्वेश्चन मार्क क्यों डाल रहा है? इट इज करेक्ट, फ्रूट्स। फ्रूट्स देखा आपने? फ्रूट्स है ना, मैंगो जब शुरुआत होती है तो इतना सा होता है, 3 महीने में ऐसा बन जाता है, पूरा इस तरीके से बड़ा बन जाता है, और थोड़ा सा रुकेंगे तो ये और बड़ा बन जाता है, लाइक दिस, है ना। सो फ्रूट्स, तो फ्रूट्स में भी आपको साइटोकाइनिन्स मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे कम समय में ज्यादा से ज्यादा ग्रोथ होना है ना, दैट इज व्हाई साइटोकाइनिन रिक्वायर्ड हियर विल बी more. So what are cytokinins? So cytokinins are basically the one which is responsible for cell division. इसके लिए यहाँ पे लिखा है cytokinesis. Cytokinesis का मतलब आता है cell division. So the substances that stimulates the cell division is known as cytokinin. यहाँ तक ठीक? Okay. So how cytokinins was discovered? Discovered by Skugge and Miller, or Skugge and Miller in 1955. Where and how they discovered? They have discovered this in the tobacco pith culture. ठीक है, tobacco का जो pith होता है, pith is what? It is the inner substance of the part of the plant. या stem हो सकता है, leaf हो सकता है, तो उसका जो inner substance रहता है, अंदर का, सबसे अंदर का part, उसको हम लोग pith बोलते हैं। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल ये स्टेम है, ये स्टेम को अगर मैंने कट किया तो ये आपको ऐसा दिखेगा, तो इसके अंदर का ये जो पोर्शन होता है, दैट इज नोन एज द पिथ, सेंट्रल पोर्शन. सो इट वाज ऑब्जर्व्ड फॉर द फर्स्ट, डिस्कवर्ड हियर इन द टोबैको पिथ कल्चर. ठीक है, सो द डिस्कवर्ड सब्सटेंसेस दैट स्टिमुलेट, दे डिस्कवर्ड दैट द सब्सटेंसेस दैट स्टिमुलेटेड द सेल डिवीजन, राइट, एंड द सब्सटेंस वाज नेम्ड एज साइटोकाइनिन. ठीक है, नाउ what they did was they autoclaved the herring fish and the sperm DNA. Herring fish's sperm and its DNA was autoclaved. ठीक है, मतलब हीट रिएक्शन उसके साथ किया गया, and then the substance was isolated. So and then isolated the substance, stimulating the cell division. तो पहले ये फिश में भी स्टडी किया, पहले वो प्लांट में भी स्टडी किया गया, फिश में भी स्टडी किया गया. फिश में ऑटोक्लेविंग किया गया ऑफ द स्पर्म्स डीएनए ऑफ द हेरिंग फिश.
And what it was observed, that then they isolated the substance which is causing the cell division, and that substance was given the name as kinetin. ठीक है? And similar type of substance was found in the plants also. जो सब्सटेंस यहाँ पे स्पर्म के डीएनए में या फिर स्पर्म में मिला फिश के, वही सब्सटेंस, सिमिलर टाइप ऑफ सब्सटेंस दे फाउंड इन द प्लांट्स. तो प्लांट्स में वो सब्सटेंस को नाम दिया गया साइटोकाइनिन. ओके, ठीक है. सो दिस इज हाउ साइटोकाइनिन्स वर डिस्कवर्ड. मतलब कंपैरेटिव स्टडी है. एनिमल्स में भी सब्सटेंस मिला, प्लांट में भी मिला. जो एनिमल में मिला उसको नाम दिया गया काइनेटिन, जो प्लांट में मिला उसको नाम दिया साइटोकाइनिन्स. कौन सा लास्ट स्लाइड? ये चल. Now what are the characteristics? Composition. इसका composition क्या होता है? Chemically, they are basically the adenine derivatives, which is a type of purine, nitrogenous base है. Sir, fish वाला slide. Present slide, sir. एक मिनट, just a minute. Students, just give me a minute, huh? Just wait.
ओके, हो गया। शैल वी मूव अहेड नाउ? डिस्कवरी हो गया साइटोकाइनिन्स का। कैरेक्टरिस्टिक्स देखो, केमिकल कंपोजिशन क्या है? केमिकली दीज आर बेसिकली एडिनाइन डेरिवेटिव्स, ओके, विच आर नथिंग बट द टाइप ऑफ प्यूरिन्स ना, नाइट्रोजनस बेस रहता है ना प्यूरिन, तो उसमें से एडिनाइन इज वन ऑफ द प्यूरिन। सो केमिकली दीज आर द एडिनाइन डेरिवेटिव्स एंड कोकोनट मिल्क इज अ रिच सोर्स ऑफ साइटोकाइनिन्स। कोकोनट मिल्क किसके लिए यूज होता है पता है क्या? हेलो, जो लोग फिश खाते हैं उनको पता रहेगा। कोकोनट मिल्क यूज फॉर व्हाट? कोकोनट से मिल्क निकलता है, वो पता है क्या? नो सर। शाबाश, वही पता नहीं था हम लोगों को कि कोकोनट से मिल्क निकलता है। यस, लोहिता को पता है, सानिका वालिम्बे को पता है। सानिका, कहाँ पे यूज होता है ये? सर आई डोंट रिमेम्बर, बट मैंने ये देखा है बहुत बार। साई प्रसाद, किधर यूज होता है ये? दिवाळीत कुठे लावतात? दूध कोणाला लावायचं दिवाळीत? नो, फिश मेकिंग में भी नहीं होता है। इट इज, आपने कभी नाम सुना है सोलकड़ी? इसके साथ नहीं। कोंकण का बहुत फेमस एक ड्रिंक है, कोंकण में मिलता है सोलकड़ी, तो वो इससे बनता है। कोकोनट का एक्सट्रैक्ट निकाला जाता है, लिटरली ये जो व्हाइट पोर्शन रहता है ना उसका एक्सट्रैक्ट निकालते हैं, तो दैट इज व्हाइटिश इन कलर, इसके लिए उसको कोकोनट मिल्क बोलते हैं। ओके, सर ये वही है ना जो नारंगी पूर्णिमा में यूज होता है दूध? नारळी पूर्णिमा, हाँ करते हैं, कुछ कुछ लोग करते हैं यूज उसको, राइट। बट अगेन एज आई सेड ना, सोलकड़ी इज द दिस वन, तो दैट इज रिच सोर्स ऑफ साइटोकाइनिन्स। लेकिन उसका हमें कुछ फायदा होने वाला है क्या कि हमने फिर सोलकड़ी पिया तो हमारा सेल डिवीजन बढ़ेगा? ऐसा होगा क्या? नो। क्योंकि ये प्लांट हार्मोन है ना, हमारे लिए ग्रोथ हार्मोन है जो हमारा अलग है। हाँ सर, पर उसमें फिश का कुछ नहीं है ना, फिश का कुछ नहीं होता है बेटा, फिश के साथ पिया जाता है ये। इसके लिए मैंने बोला कि जो लोग फिश खाते हैं उनको ये पता होता है। पर्पल कलर सानिका इज बेसिकली बिकॉज ऑफ इधर दे ऐड सम कलर और सम लाइक यू नो, वो सर ये देता है ना, कोकम। क्या बोलते हैं उसको यार, कोकम सर, कोकम। कोकम, हाँ, तो वो थोड़ा सा उसमें ऐड करते हैं फॉर द टेस्ट, इसके लिए कलर थोड़ा बदल जाता है उसका। यस करेक्ट, आदित्य ने परफेक्ट बताया। इट इज यूज्ड इन थाई करी, वेरी कॉमन, थाई करी में यूज होता है इसका। ठीक है, व्हाट इज द साइट ऑफ सिंथेसिस? अच्छा, कहाँ पे सिंथेसाइज होता होगा? कैन यू टेल मी? साइटोकाइनिन्स कहाँ पे सिंथेसाइज होगा? इन ऑल द सेल्स विच हैज टू अंडरगो सेल डिवीजन ना, बराबर है। तो कौन कौन से होते हैं? सो यंग प्लांट्स, रूट्स, स्टेम, सीड्स, फ्रूट्स, लीव्स एक्सेट्रा, जितने भी यंग स्ट्रक्चर्स है जहां पे सेल डिवीजन इज नेसेसरी, देयर दिस पर्टिकुलर साइटोकाइनिन्स विल बी synthesized. So that is the site for synthesis of cytokinins. Yes, perfect, meristematic cells. लिखो। व्हाट गोल्गी? खुशी? डन सर। सर गोल्गी में सिंथेसिस, ना ना वैसा नहीं, ऑब्वियसली हाँ, यानी सेल्स में सिंथेसाइज होगा वो,
but these are the parts where it will be synthesized. But where it will be synthesized by the Golgi apparatus only. तो Golgi complex रहेगा, endoplasmic reticulum, तो सब मिलकर ही बनाएंगे ना ये, सेल्स में ही बनेगा. ओके, चलो applications and role. So basically cytokines are known to induce the cell division. करेक्ट, तो सेल डिवीजन इंड्यूस करते हैं. तो इसको हम लोग कहाँ इसका एप्लीकेशन हो सकता है? सो इट्स एप्लीकेशन अलोंग विद द ऑक्सिन will accelerate the rate of mitosis during callus formation. If you remember, callus formation में हम लोगों ने ऑक्सिन का रोल देखा था. उसमें हम लोगों ने वो पेट्री डिश में अगर साइटोकाइनिन्स को भी ऐड किया तो callus formation will be comparatively faster. Why? Because it induces and promotes the cell division. ये सेल डिवीजन को प्रमोट करता है, इंड्यूस करता है, इसके लिए इसकी जरूरत है. ठीक है, सो दिस इज द फर्स्ट एप्लीकेशन, or you can say it's a primary function of the cytokinin. Okay, चलो हो गया. Done, sir. हो गया सबका लिख के? चलो, then cytokinin also induces organogenesis along with the auxins. Organogenesis मतलब क्या? Development of the organs. ठीक है, so formation of different organs during growth of the plant is known as organogenesis. Okay, तो अलग अलग organs plants के बनते हैं during this entire growth and development of the plant. So for that cytokinins are also useful. So naturally, if there is more auxin along with the less cytokinins, this will lead to root formation. So that is known as rhizogenesis. बराबर है? So it is called as the rhizogenesis. Whereas less auxin along with the more cytokinins will help in shoot formation. So that is known as calogenesis. Okay, cologenesis और calogenesis यानी शूट फॉर्मेशन हो रहा है. क्योंकि शूट फॉर्मेशन के लिए मेजरली साइटोकाइनिन्स लगता है, रूट फॉर्मेशन के लिए मेजरली वी रिक्वायर ऑक्सिन्स. सो ये फॉर्मूला है. तो इस तरीके से फर्टिलाइजर्स ऐड किए जाएंगे प्लांट के लिए इन द सॉइल बाय द फार्मर, सो दैट यू नो इट स्टार्ट्स डेवलपिंग द टिश्यूज लाइक दिस. समझ में आ रहा है ना सबको ये? तो दोनों का कंबाइंड यूज हो रहा है. ठीक है, finished? Okay, good. Next, then degradation of any organ is known as senescence or aging, which is a natural mechanism. कोई भी स्ट्रक्चर, कोई भी प्लांट का एक पर्टिकुलर ऑर्गन जो होता है, it has to undergo a natural mechanism of senescence or old age. बराबर है? मतलब डेवलप होगा प्लांट का कोई एक पर्टिकुलर पार्ट डेवलप होगा, उसके बाद इट विल नेचुरली अंडरगो डिस्ट्रक्शन प्रोसेस. तो उसको हम लोग सेनेसेंस और एजिंग ऐसा बोलते हैं. ओके, वैष्णवी डन? Yes, sir. हाँ, सो हाउ यहाँ पे साइटोकाइनिन्स आर यूजफुल. सो साइटोकाइनिन्स आर नोन टू डिले द सेनेसेंस. तो ये जो सेनेसेंस आ रहा है यानी एजिंग का जो प्रोसेस हो रहा है, दैट इज डिलेड बाय द साइटोकाइनिन्स. करेक्ट. सो अब ये कैसे काम करेगा? हाउ दे आर गोइंग टू डिले द सेनेसेंस? दे विल प्रिवेंट द डिग्रेडेशन ऑफ मेटाबोलाइट्स एंड प्रमोट्स देयर सिंथेसिस. मेटाबोलाइट्स आर द केमिकल्स विच आर यूज्ड फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. तो थोड़ा उसका डिग्रेडेशन प्रिवेंट करेंगे, मतलब डिस्ट्रक्शन प्रिवेंट करेंगे, सो दैट दिस मेटाबोलाइट्स विल बी मेंटेन्ड इन द प्लांट बॉडी एंड thus it will help in further promoting their synthesis. Correct? So that the senescence, that is old age in the plants, can be prevented. So this is water, normal water में रखा हुआ leaf है, and this particular leaf is kept in the water along with the cytokinins. So as you can see here, the leaf is still green and the leaf is actually growing, right?
So basically it degrades the metabolites, prevents the degradation of the metabolites. मतलब it will not allow the destruction of the metabolites and plus will promote their synthesis. उनका production भी बढ़ा देगा. So that is how cytokinins will delay the senescence. समझ में आ रहा है? जैसे पहले वाले हार्मोन में भी देखा ना हमने गिबरेलिन्स में. Yes or no? Gibberellins will also have the similar function ना, delaying the senescence. वैसा ही हाँ, इसका भी सेम फंक्शन है, delaying the senescence. सो गए क्या सब लोग? नो सर. हाँ, जागते रहो, हम पे भरोसा मत करो. ऐसा जोक आया था एक, अंधे आदमी को बनाया गया था. एक आदमी था, वो कंटिन्यूअस बोलता था जागते रहो, हम पे भरोसा मत रखो, ऐसे चिल्लाता था. 8 दिन 8 रातें 10 रातें 50 रातें, सब लोग कंफ्यूज थे कि ये आदमी ऐसा क्यों बोलता है, जागते रहो हम पे भरोसा मत रखो, जागते रहो हम पे भरोसा मत रखो. फिर बाद में पता चला, उसको पूछा कि तू ऐसा क्यों बोलता है, तो वो बोलता है साहब मैं अंधा हूं, मुझे कुछ दिखता नहीं है ना. इसके लिए बेचारा मस्त जोक था ये पहला वाला. ये सानिका राजे गोरे, ओए राजे गोरे, तो ये डन. रुक रे लोहिता. हाँ, ये ऑर्गेनोजेनेसिस. श्रुति का एक ही सवाल होता है, हमारी मांगे पूरी करो. है ना श्रुति? Okay, so this is how it helps in cytokinins will delaying the senescence. This is known as Richmond-Lang effect. ये कौन है? These are the scientists, Richmond and Lang. ये दोनों ने मिलकर डिस्कवर किया था. ठीक है? So that's called as a Richmond-Lang effect. कोलोप्टाइल क्या बेटा आदित्य? Sir, those things which are put in that petri dish, are they polyptiles? No, these are the leaves. Okay. प्लेन लीव्स है. एक्सपेरिमेंट के लिए किया है ना, इसके लिए. चलो, साइटोकाइनिन्स विल आल्सो प्रमोट द फॉर्मेशन ऑफ द न्यू लीव्स. नया लीव्स बनाने में भी काम में नेचुरली, क्योंकि सेल डिवीजन कर रहा है ना, तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में ये नया लीव्स भी बनाएगा. प्लस फॉर्मेशन ऑफ द क्लोरोप्लास्ट, जो ग्रीन पिगमेंट रहता है सेल्स के अंदर. प्लस हेल्प्स इन फॉर्मेशन ऑफ द लैटरल शूट्स, है ना. जैसे अपाइकल डोमिनेंस इज बाय apical dominance is by हाँ, कौन करता है अपाइकल डोमिनेंस? ऑक्सिन. तो लैटरल बर्ड को तो ग्रो करना ही पड़ेगा ना, तो लैटरल बर्ड को ग्रो करने के लिए मदद कौन कर रहा है? सो इट इज हेल्प बाय साइटोकाइनिन्स. ओके, and plus helps in adventitious roots also, formation of the adventitious roots.
श्रुति हिंग मेरे, आई एम हियर, लेकिन फिर से मुझे कॉल आ गया था तो मुझे रुकना पड़ा। क्या चाहिए श्रुति तुझे? क्यों मुझे ढूंढ रही है तू? तुती कुछ नहीं, 1 मिनट रुको जरा। स्टूडेंट मैं जरा 1-2 मिनट के लिए स्क्रीन शेयरिंग रोक रहा हूँ, जस्ट वेट। ओके, आई एम देयर, आई एम सो सॉरी। चलो आगे आ गया। Okay, so basically cytokines are known to promote the formation of the new leaves, formation of the chloroplast, lateral shoots as well as the adventitious shoots. Adventitious shoots मतलब ये वाले, बराबर है, the one which helps in support, giving support to the main shoot, तो उसको support करते हैं, right? So that is the function. Then cytokinin also counteract the apical dominance. जैसे अभी मैंने बताया lateral bird को promote करता है ना. Suppose we have this particular plant here, ये plant का ये lateral birds है, तो ये lateral bird को promote करता है, तो naturally it's going to counteract, मतलब opposite काम करेगा ऑक्सिन के, बराबर है.
तो जैसे यहाँ पे ये ऑक्सिन काम कर रहा है इधर ऑन द अपाइकल बर्ड, करेक्ट. सो दिस इज एन एक्टिव अपाइकल बर्ड विच इज सपोर्टेड बाय ऑक्सिन, जिसके ऊपर कौन काम कर रहा है, ऑक्सिन. एंड दिस इज अ डॉर्मेंट लैटरल बर्ड, बट हियर साइटोकाइनिन एप्लीकेशन विल हेल्प इन इंक्रीजिंग द or developing the lateral buds into the lateral growth. And because it is helping in developing the lateral growth, therefore its applications will reduce the apical dominance even in the presence of apical bud. Yes, you have to draw this. So though the apical bud is present, still apical dominance will be reduced. तो कभी कभी प्रूनिंग की जगह हम लोग क्या कर सकते हैं, प्रूनिंग नहीं करेंगे, मतलब अपाइकल बर्ड को नहीं कट करेंगे. इंस्टेड व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज दैट वी आर गोइंग टू गिव देम साइटोकाइनिन. तो हम लोग साइटोकाइनिन का एप्लीकेशन करेंगे. इफ वी प्रोवाइड देम और स्प्रे साइटोकाइनिन हार्मोन ऑन द प्लांट्स, सो नेचुरली लैटरल बर्ड्स विल स्टार्ट ग्रोइंग इनटू द स्टेम. तो इसका ग्रोथ होना चालू हो जाएगा. तो लैटरल ग्रोथ भी ग्रो होगा और अपाइकल बर्ड भी ग्रो होगा. लैटरल बर्ड भी ग्रो होगा और अपाइकल बर्ड भी ग्रो होगा. सो दोनों भी ग्रो होना चालू हो जाएंगे. समझ में आ रहा है सबको, ये थियरी समझ में आ रहा है? हेलो, यस सर. झोपले नाही ना सगळे? नहीं सर. संजीवनी को क्या हो गया? कौन सा लास्ट लेटर संजीवनी? ये दिस वन. क्या हो गया श्रावणी, नहीं क्यों बोल रही है? श्रावणी सो रही है ऐसा बोल रही है. अच्छा, झोपले का विचारलं तुम्ही म्हणून. ओके, तो तू लिहिलंय नाही आणि कॉमा लिहिला आणि झोपली असं लिहिलंयस. चलो आगे बढ़े. हेलो, डन सर. सब लोग सो के लेक्चर कर रहे हैं. सो साइटोकाइन नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन, और क्या एप्लीकेशन काम में आता है. साइटोकाइनिन्स हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ इंटरफेसिकुलर कैम्बियम ड्यूरिंग सेकेंडरी ग्रोथ. सेकेंडरी ग्रोथ आर जनरली सीन इन द डाइकॉट्स, तो वहां पे ये मिलेगा. तो दिस इज नोन एज इंटरफेसिकुलर कैम्बियम. जो ये ब्लू कलर का लाइन दिख रहा है ना, वो हम लोग अभी नेक्स्ट चैप्टर जो आएगा पढ़ने वाले हम लोग, तो उसमें आएगा ये. सो दिस इज नोन एज इंटरफेसिकुलर कैम्बियम, which generally develops from the conductive tissue, that is xylem and phloem, correct. और ये कैम्बियम रिंग होता है. फिर ये रिंग बाहर जाएगा, फिर नया रिंग बनेगा, फिर ये रिंग बाहर जाएगा, नया रिंग बनेगा. इसकी वजह से इट हेल्प्स इन इंक्रीजिंग द गर्थ ऑफ द स्टेम. जो स्टेम पहले एकदम छोटा था, धीरे 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 वो स्टेम बड़ा होते जाता है, उसका गर्थ बढ़ते जाता है. इट इज बिकॉज ऑफ इंटरफेसिकुलर कैम्बियम. तो इसका फॉर्मेशन इज ऑल्सो प्रोमोटेड बाय साइटोकाइनिन्स. जिसमें ये सेल्स में क्या होता है, तो ये सेल्स में होता है रीडिफरेंशिएशन. इफ यू रिमेंबर हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था, डिफरेंशिएशन, रीडिफरेंशिएशन एंड डी डिफरेंशिएशन, करेक्ट. रीडिफरेंशिएशन मतलब क्या, the cells which have already undergone permanent functioning again develops the character of meristematic cells and start dividing. मतलब आगे जाके वो फिर से पीछे जाएगा, right, and then the cell division will take place there. So that's called as redifferentiation. तो वहां पे ये वाला cytokinin will be useful. Clear? यस सर. गुड. चलो इसको लिख लो फटाफट, पटा पटा लिवा. डन सर. ओके.
Sir, so no pruning required in the earlier case when the cytokinins counter apical dominance. Sorry for us. No. Aditya बराबर है. But then in certain cases pruning is the only solution available. जहाँ पे आप ये वाला process नहीं कर सकते हो या फिर spraying of this becomes a tough task, तो वहाँ पे you go for pruning. That is always advisable. लेकिन अगर pruning बहुत ही ज्यादा complicated हो रहा है तो apply cytokinins. तो वो कौन से plants है, उनका किस तरीके से development हो रहा है, how it is feasible, so you have to work on that. दोनों का रिजल्ट एक ही रहेगा. सिर्फ फर्क ये होगा कि प्रूनिंग में ना प्लांट का हाइट नहीं बढ़ेगा, सिर्फ प्लांट इस हॉरिजॉन्टली फैलते रहेगा. बट इन केस ऑफ द सेकंड कंडीशन जहां पे वी आर नॉट डूइंग द प्रूनिंग एंड वी आर प्रोवाइडिंग साइटोकाइनिन्स, तो प्लांट का हाइट भी बढ़ रहा है और प्लांट का हॉरिजॉन्टल ग्रोथ भी हो रहा है. तो आपके ऊपर है कि प्लांट का हाइट बढ़ाना है कि नहीं बढ़ाना है. जनरली हम लोग प्रूनिंग वही करते हैं वेयर वी डोंट वांट दैट प्लांट टू इंक्रीज ग्रो विद द हाइट. ठीक है, सो वहीं पे प्रूनिंग ज्यादा होता है. ओके सर. हाँ. So these are all the applications, roles and application of cytokinins, primarily responsible for cell division, then induces organogenesis with the auxins, delaying the senescence, which is known as Richmond-Lang effect, similar to what we have seen for gibberellins, then helps in formation of the leaves chloroplast as well as the shoot formation. Okay. Then counteract the apical dominance by developing the lateral buds. Then helps in formation of interfascicular cambium, which helps in the increase in the girth of the plant. Okay, plant stem के girth को बढ़ाने में काम में आता है. Right? So these are all the functions of the cytokinins. Cytokinins के बाद the next comes is the ethylene. This is the only hormone which is available in the gaseous form. And it is primarily useful for ripening of the fruit. इसके लिए उसको बोला गया है ripening hormone. Plants naturally ये hormone को use करते हैं for the ripening purpose, but farmers are known to expose fruits when they are young to ethylene so that the early ripening will take place. Season होता है ना, तो इसके लिए कुछ fruits होते हैं, जैसे for example mango. मैंगो का बेस्ट सीजन कौन सा है? मैंगो का बेस्ट सीजन स्टार्ट्स फ्रॉम द मंथ ऑफ अप्रैल और मई. बराबर है. लेकिन कई बार आपने देखा होगा कि मैंगो मार्केट में आ जाता है फरवरी में भी या फिर मार्च में भी. तो ये जो फरवरी और मार्च में जो आता है ना, दीज मैंगोज आर एक्सपोज टू इथाइलिन गैस फॉर प्री मैच्योर राइपनिंग. करेक्ट, इट्स कॉल्ड एज प्री मैच्योर राइपनिंग. हाँ, तो इधर इंजेक्शन, क्योंकि इथाइलिन गैसियस फॉर्म में ना, इसके लिए उसके इंजेक्शन की जरूरत नहीं होती है. दे कैन बी डायरेक्टली एक्सपोज टू द गैसेस. सर अभी आया न्यूज में, देखा 1-2 दिन पहले. हाँ वही तो श्रावणी, वही मैं बोल रहा था. तो ये ऐसे ही प्रॉब्लम होता है. ठीक है, ओके. नाउ द नेम ऑफ द साइंटिस्ट हु रिपोर्टेड दिस वाज गेन. ओके. So as I said, it is the only gaseous hormone found in the organisms. मैंगोज नहीं आया अभी तक श्रुति. हाउरट मैंगो बिंगो बोला तो चालू हो गई है. चलो, then what are the characteristics of ethylene? Chemical composition, as I said, it's a gaseous hormone. So हाउरट का मतलब पूछ रही है. हाउरट मतलब भुक्कड़. So it's a colorless unsaturated hydrocarbon. This is the chemical nature of the ethylene. So it's a precursor of amino acid known as methionine. Okay, methionine नाम का एक amino acid होता है, उसका ये precursor है. This is the chemical formula C2H4 is ethylene gas. So it's a colorless unsaturated hydrocarbon. Right? ये slide आदित्य. Yes sir. हो गया? Yes sir, done. चलो, ये इंपॉर्टेंट है इथाइलिन गैस का ये इंफॉर्मेशन. प्लीज राइट इट डाउन प्रॉपरली. डन.
No, sir. Okay. प्रीकर्सर का मतलब होता है प्रीवियस फॉर्म, मतलब ये बनता कैसे है, फ्रॉम विच प्री फॉर्म इट डेवलप, सो दैट प्री फॉर्म इज मेथिओनिन. Done, sir. ठीक है वैष्णवी. ओके चलो, व्हाट इज द साइट ऑफ सिंथेसिस? सो नेचुरली शूट एपेक्स ऑफ द सीडलिंग एंड द राइपनिंग फ्रूट्स. तो जनरली सीडलिंग या फिर राइपनिंग फ्रूट्स में ही आपको ये हार्मोन मिलेगा, बहुत ज्यादा अलग अलग जगह पे आपको ये नहीं मिलेगा. ओके, so that is the site for synthesis. So auxin application promotes the ethylene synthesis, so that is why it is known as the secondary hormone. ठीक है, ऑक्सिन एप्लीकेशन अगर करते हैं तो उसकी वजह से इथाइलिन सिंथेसिस भी होता है, एंड इथाइलिन सिंथेसिस विल हेल्प इन राइपनिंग ऑफ द फ्रूट्स. तो मतलब नॉर्मल कंडीशन में, नॉर्मल मैकेनिज्म में, whatever normal quantity of oxygen is present in the plant, that helps in synthesis of ethylene gas in such a way that when that plant develops the fruits, it will ripe properly at a proper time. वहीं उसको अगर excess exposure दिया तो वो जल्दी हो जाएगा, ऐसा है. So that we need to learn in application. हो गया? No, sir. सर यहाँ पे ऑक्सिन या इथाइलिन सेकेंडरी हार्मोन है? इथाइलिन बेटा. ओके. For oxygen it is secondary hormone ना. Done, sir. No, sir. हाँ हाँ. पांच लोग गायब हो गए. Done, sir. Sure. Good. Now, more carbon dioxide, if it is present in the environment, then it reduces the production of the ethylene. So ethylene gas will be stopped. So increased CO2 has inhibitory effect on the ethylene production. Okay, तो इथाइलिन प्रोडक्शन एकदम कम हो जाएगा. So the green and unripe fruits are transported in CO2 rich medium for the same purpose, because if they are transported to CO2 rich medium, then chances are there that the ripening of the fruit will take place. Correct? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड अगर रहेगा तो what happens? CO2 has an exact opposite effect, meaning CO2 will inhibit the activity of the ethylene, will not allow ethylene gas production. ठीक है, and that is why whenever you are transporting the fruit, जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि export quality का grapes, for example, they are extremely green in color and they should not ripe fast, क्योंकि उनको ट्रांसपोर्ट करके जैसे यहाँ से लंदन भेजना है, यहाँ से यूएस में भेजना है, तो वो लोग क्या करते हैं, दे आर केप्ट इन अ कंटेनर, विद दैट कंटेनर इज एक्सपोज्ड टू द कार्बन डाइऑक्साइड. Correct? And if that container has carbon dioxide, so naturally those grapes will be exposed to CO2 and then these grapes will not ripe. Are you getting this? ठीक है, समझ में आ रहा है? So this is how the character will be seen. So that is another characteristic of ethylene. ठीक है, लिख लो इसको. कौन आलय? हाँ हाँ ठीक है ठीक है. डन हो गया, फिनिश्ड. Yes, sir. Okay. Now, ethylene is widely used in agricultural practice, in agriculture as ethofene. This is a typical commercial use, commercial name. Ethofene नाम से आता है ये, which is a source of ethylene. Okay.
ठीक है. So this is like control, and this particular fruit is exposed to the ethophen. ठीक है. So it radially absorbs and converts into ethylene. मतलब ethophen will be converted into ethylene, and then that ethylene will help in ripening of the fruit. Correct. तो राइपनिंग जल्दी होता है फ्रूट्स का, तो उसके लिए इथोफेन, ये केमिकल के नाम से ही मार्केट में मिलता है. ओके. फर्टिलाइजर्स, एज अ फर्टिलाइजर कॉल्ड एज द इथोफेन, राइट. सो दिस इज हाउ इथाइलिन विल बी यूज्ड. सो राइपनिंग से ही रिलेटेड सारे फंक्शन है इथाइलिन के. फाइन. डन. No, sir. हाँ. Done, sir. Chalo, the next hormone, the last hormone which we have here is the abscisic acid. Last ही है ना. पहला कौन सा पढ़ा था हमने? ऑक्सिन. दूसरा गिबरलिंस. तीसरा कौन सा है? साइटोकाइनिन. चौथा इथाइलिन. इथाइलिन. और अब ये पांचवा, दैट्स कॉल्ड एज एब्सिसिक एसिड. नाम से ही पता चलता है ना, व्हेन वी से एब्सिसिक एसिड मतलब क्या? नेचुरली अकरिंग ग्रोथ इनहिबिटर, ग्रोथ को रोकने वाला. क्यों? बिकॉज इट कॉजेस एब्सेशन. एब्सेशन का मतलब क्या आता है? फॉलिंग ऑफ लीव्स, विल्टिंग ऑफ लीव्स बोलते हैं ना हम लोग इसको, विल्टिंग ऑफ द फ्रूट्स, विल्टिंग ऑफ द लीव्स. तो इसको प्रमोट करने वाला जो हार्मोन होता है दैट्स कॉल्ड एज एब्सिसिक एसिड. इसके लिए वो मैकेनिज्म को भी एब्सेशन ऐसा नाम दिया है. एंड प्लस इट आल्सो प्रमोट्स डॉर्मेंसी, मतलब इट कीप्स द सीड्स इनएक्टिव. करेक्ट. अच्छा, सीड्स का डॉर्मेंसी प्रिवेंट करने वाला कौन है? The one which prevents the dormancy of the seed is Brilliance. गिब्बरलिंस. कौन? गिब्बरलिंस. Very good, gibberellins. Correct. And dormancy को cause करने वाला कौन है? The one which promotes dormancy is the abscisic acid, right? So abscisic acid is therefore also known as anti-gibberellic hormone. Okay. तो इसके लिए उसको anti-gibberellic hormone ऐसे भी बोला गया है. So it is produced during unfavorable climatic conditions like drought, floods, minerals deficiency, etc. तो उस टाइम पे ये प्रोड्यूस होता है. That is why it is also called as the stress hormone. क्यों? Because it makes the plant inactive. है ना, विल्टिंग कॉज करेगा. अभी विल्टिंग हो गया तो क्या होगा? Actually leaves will not be there, and as there are no leaves. क्यों? क्योंकि कंडीशन ही वैसा है ना, ड्रॉट लाइक कंडीशन है, या फ्लड्स है, या फिर देयर इज मिनरल डेफिशिएंसी. तो ऐसे कंडीशन में फोटोसिंथेसिस शुड स्टॉप, क्योंकि फोटोसिंथेसिस चालू रहेगा तो फूड नहीं बनेगा, फूड नहीं बनेगा तो और प्रॉब्लम आएंगे. एक्टिविटी को मिनिमाइज करना है. सो दैट इज व्हाई एब्सिसिक एसिड विल बी यूजफुल. So especially in these conditions, therefore it is also called as the stress hormone. जैसे हमारे बॉडी में होता है एड्रेनालिन, वैसा प्लांट के लिए होता है एब्सिसिक एसिड. ओके, हो गया लिख के ये. डन सर. चलो, इट वर्क्स एंटागोनिस्टिक टू गिब्रालिन. एंटागोनिस्टिक का मतलब आता है ऑपोजिट. गिब्रालिन will stimulate the dormancy. Here it inhibits the growth stimulated by gibberellin, and because it inhibits the growth stimulated by gibberellin, therefore it is also known as anti-gibberellin hormone. The one which works against the gibberellin, therefore called as anti-gibberellin hormone. Okay. Done.
आगे बढ़े. What are the characteristics of abscisic acid? ABA बोलते हैं उसको, short standard short form है ABA. Okay, site of synthesis कहाँ पे होगा? So it is majorly synthesized in the mature leaves, flowers and fruits. बराबर है, क्योंकि इसका क्या करना है अपने को, mature leaves, flowers और fruits का wilting करना है, मतलब उनको गिराना है, तो इसके लिए काम में आएगा. So that is the site of synthesis. Mode of transport of course will be non-polar in all the direction. हर जगह पे जाएगा, अपवर्ड एज वेल एज डाउनवर्ड, तो दोनों डायरेक्शन में ये ट्रांसपोर्ट होता है थ्रू द फ्लोएम. करेक्ट. सो दैट इज द मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट. नाउ abscisic acid causes dormancy in the bud, seed and tubers, especially when the conditions are unfavorable, and it prevents the seed or buds to grow under unfavorable conditions. Plant, if it recognizes that the conditions are not favorable for their overall growth and development, that time there is release of excess abscisic acid, which prevents the further development of the bud into a flower. बराबर है, तो फ्लावर ही नहीं बन पाएगा. हो गया क्या सबका? प्रीवियस स्लाइड ये शुरू थी. Finished? No, sir. Done? No, sir. हाँ. आगे बढ़े. हेलो, सो गए? डन सर. यस सर. ये लास्ट स्लाइड ले. चल. As I said, as I said, it causes dormancy in the buds, seeds and tubers. बराबर है. Since it is causing dormancy in the buds, seeds and tubers, so naturally this condition will be seen when the conditions are unfavorable. जैसे excess temperature, extremes of temperature है, या फिर changes in the soil are there, drought like situation आ गया, या फिर flood like situation आ गया, या फिर जैसे नो marshy areas develop हो गए, water clogging condition हो गया. So under such situation, the bud or the seed should not develop into a further flower. तो उसके लिए फिर abscisic acid will be useful. Then it also causes closing of the stomata. ठीक है. And since the stomata are closed, so naturally it will prevent the transpiration in the drought condition. Drought मतलब क्या? Dryness. Already पानी कम है, ऊपर से अगर स्टोमाटा की वजह से अगर वाटर लॉस हो गया, तो naturally it will kill the plant early. So to prevent that damage, abscisic acid will help in closing the stomata. कौन सा लास्ट स्लाइड चाहिए आलोक? ये ओके. सो यहाँ पे एब्सिसिक एसिड का रिलीज होता है तो स्टोमाटा विल बी क्लोज्ड. करेक्ट. ये हो गया. कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं ना आपको? और पर्पज ही वो है टू प्रिवेंट ट्रांसपिरेशन. ट्रांसपिरेशन को रोकने के लिए ये मैकेनिज्म होता है. ठीक है. फिनिश्ड? Yes sir. Are done. Now this is what? This is called as wilting of the leaves. So that is also promoted by abscisic acid. So called as abscission. So it promotes the senescence and abscission. So there is loss of chlorophyll and less photosynthesis. With decreased RNA synthesis, the leaves will start falling. तो ऐसे leaf fall होना चालू हो जाएगा. तो क्लोरोफिल भी चला जाएगा, फोटोसिंथेसिस कम हो जाएगा, RNA synthesis will also decrease. तो उसकी वजह से क्या होगा? There will be wilting of the leaves. Okay, and this wilting of leaves is known as abscission.
Okay, so it is called as the abscission. And this abscission is promoted by abscisic acid. Okay. So this is probably the primary function. Done. Table बना के रखो इसका मस्त एकदम perfect. So that will help you. Done. चलो good. So ये पूरा summary है. sir. हाँ. Finished? Yes, sir. हाँ. चलो पहला causes dormancy in bird seeds and tubers. Second causes closing of stomata under drought-like conditions. Third promotes senescence and abscission, and then in the leaves it causes loss of chlorophyll and decreased photosynthesis, leading to what? Leading to wilting of the leaves. Okay, so this is about all the different types of hormones. तो ये सारे hormones plant के हमारे खत्म हो गए. एक छोटा सा कंटेंट है, वो कंटेंट मैं चेक करता हूँ, पीडीएफ फॉर्मेट में रहेगा तो वो मैं आप लोगों को सेंड कर दूंगा. सो दैट विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट प्रॉपर्ली. टेबल फॉर्म में है, राइट? तो वो मैं दे दूंगा आपको. ओके, चलो अभी यहाँ पे रुकते हैं. नेक्स्ट लेक्चर के लिए 4:30 बजे फिर से मिलते हैं. बाय बाय, सी यू, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल. थैंक यू. Thank you, sir. Thank you, sir. Sir. समरी वाला स्लाइड ये चाहिए. संजीवनी, लोहिता हो गया क्या? ये साइटोकाइनिन का समरी नहीं है संजीवनी, इसके लिए वो मिस हो गया है. इशिता कौन सा लास्ट स्लाइड चाहिए? ये ओके. बाय लोहिता. इशिता डन. यस इशिता. Bye, sir. तेरा मैसेज आया लास्ट स्लाइड, इसके लिए मैंने पूछा. बाय बाय. Bye, sir. Thank you, sir. यस.